Action, solidarity, culture, the Reela Collective. Our speakers belong to the Reela community. Our moderator for the session is Kaman Singh Dhami, a singer and a songwriter. He drew inspiration from the Narmada Bachao Andolan, and since the late 1990s, he has been penning songs on topics ranging from the WTO to the pollution of Vrishabhavati River. One of our speakers is Kalidas Deharia. He's a singer, a poet and a cultural activist. He formed Chhattisgarhi Lok Kala Manch and has been instrumental in forming Reela Collective, bringing together several cultural groups and individuals from different parts of India. Moving on, we have Neera Dahari. Neera Deharia is associated with the Mahila Mukti Morcha in Bhilai. She advocates women taking center stage in struggles for the rights of communities and assert their own rights in the family as well as workspaces. Moving on, we have Ajit Kumar Panigrahi, is a singer and a songwriter associated with Popular People's Movement in Orissa. He is part of the Samadhwani, a progressive cultural group, and sings in his native language, Sambalpuri. We welcome you to the event. Thank you. Here, and thank you Hyderabad Literary Festival for having Reela Collective here. And I'd like to take the opportunity to introduce the topic of discussion and the context in which it is based. The topic is, as Priya said, action, solidarity and culture. And this is in the context of Reela Collective's work of cultural activism. I'd like to also explain what we mean by these words. When we talk about action, we're talking about direct action or collective action in the face of injustice, and the kinds of words that come to mind are struggle, movements, and in Hindi we would use sangharsh or आंदोलन. इस प्रकार के ये हमारे रेला कलेक्टिव के लिए ये एक्शन है. और हम जब बोलते हैं सॉलिडारिटी, वो एकजुटता की बात है. कैसे हम अनेकों आंदोलनों को साथ लेके आएँ और अनेकों लोगों को भी साथ लेते जाएं. तो ये सॉलिडारिटी हम चाहते हैं. So that's the kind of solidarity we're talking about, and this cuts across classes, this cuts across religions, this cuts across languages and different divides. And finally, the topic of culture. How is that important for us? And I feel Reela Collective culture is extremely important and encompasses all our action. And these are the nuances that we'd like to bring out in today's discussion. तो आज के संदर्भ में नीरा जी, कलादास जी और अजीत जी और मैं भी जो रेला कलेक्टिव के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इन पहलुओं में बातचीत करना चाहेंगे. तो मेरा पहला सवाल सभी के साथ है कि उनके जीवन में और उनके आंदोलनों में एक्शन की भूमिका क्या रही है. तो शायद कलादास जी शुरू करना चाहेंगे. आप सभी को जोहार सलाम. इस एक्शन के बातों पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग भी जानते हैं कि अपने जीवन में अगर हम एक्शन की बात करते हैं, किसी विषय के लिए संघर्ष की बात कर, कुल मिलाकर के संघर्ष ही हमारा एक्शन है. और वो संघर्ष में चाहे वो रैली की बात हो या जुलूस की बात हो या धरना प्रदर्शन की बात हो या आमरण अनशन की बात हो, ये तमाम चीज़ हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर वो एक्शन के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से आता हूँ, जिसका नेतृत्व करता शंकर गुहान योगी जी थे. और शंकर गुहान योगी को 1991 में छत्तीसगढ़ सरकार और वहाँ के पूंजीपतियों द्वारा मारा गया. फिर हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काफ़ी संघर्ष किए, रैलियाँ, जुलूस, लाखों का जुलूस. लेकिन वर्तमान में जो एक्शन का बात है, जो हम लोग एक्शन करते हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, तमाम चीज़ें वो पूरी तरीके से बैन की स्थिति में जा रहे हैं. जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में एक बस्तर इलाका है, वो बहुत चर्चित इलाका है. बस्तर में जो आदिवासी
धरना प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, कम से कम 36 जगहों पर अलग अलग अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। तो अभी वर्तमान में रिसेंटली 1 महीना पहले पूरे आंदोलनों को कि तुम तो जो है वो किसी आतंकवादी से मिले हो, माओइस्ट से मिले हो करके, उन तमाम धरना प्रदर्शन को भी, जो एक लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन है, जो हमारा एक्शन है, उसे भी बैन कर दिया गया। तो ये एक काफ़ी गंभीर संकट का दौर है, जिस संकट के दौर में हम जो लोकतांत्रिक हमको एक्शन करने का एक राइट हमको मिला है, वो राइट भी हमारा अभी छीना जा रहा है। तो ये लगभग उसको रेला बहुत नज़दीक से उस चीज़ को देख रहा है और उसके बारे में वो अपने गीतों के माध्यम से, तमाम तरीक़ों के माध्यम से वो बोलने का कोशिश कर रहा है। थैंक यू। शुक्रिया कलादास जी। मैं नीरा जी से भी पूछूंगा कि उनके जीवन में आंदोलन और संघर्ष की क्या भूमिका रही है। सबको नमस्कार और जोहार। मैं तो मेरा शादी हुआ 1994 में। तब से मैं देख रही हूँ कि उस समय, शादी के समय, नियोगी जी का आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा था। उस समय बहुत संख्याएं थी और बहुत तेज़ था उस समय आंदोलन। तो मैं शादी के बाद आने के बाद मुझे बहुत अजीब से लग रहा था कि आंदोलन क्या चीज़ होता है करके। मैं तो समझता नहीं था उस समय। फिर धीरे धीरे परिस्थिति को देखकर जुड़ती गई और उस नियोगी जी को मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन उनके छोटे छोटे जो संघर्ष निर्माण करके जो पुस्तक लिखे थे, उन्हीं के माध्यम से मैं पढ़ के बहुत सारा चीज़ समझी हूँ और आंदोलन से फिर जुड़ की भी गई मैं। तो जो आंदोलन था और आज भी आंदोलन है और आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं अभी आंदोलन और बढ़ने की कगार पे हैं, ख़त्म होने की वजह से बढ़ भी रही है परिस्थिति जो आ रही है इस तरह से। तो संघर्ष और निर्माण करना बहुत आवश्यक बात है। हम लोग संघर्ष के साथ साथ निर्माण भी करना बहुत ज़रूरी है और संगठन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है संगठन बनाना, रैलियां करना, जुलूस करना, मीटिंग करना, धरना सभा, सारी चीज़। तो आंदोलन हमारी शक्ति है। मैं तो देखी कि वर्तमान में एक उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे है एक ACC सीमेंट, उसको अभी अडानी खरीद लिए हैं। तो वहाँ पे बहुत आंदोलन चला है और जीत भी हुई है। वहाँ महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं। तो वहाँ एक आंदोलन के माध्यम से हमको देखने को मिला कि मैं भी उस आंदोलन में शामिल थी। और हर जगह हम देखते हैं कि गैर बराबरी, तो वहाँ मजदूरों को आंदोलन के बाद तो जो चीज़ मिली है कि महिलाएं और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा और काम की बराबरी और वेतन भी बराबरी। और कहीं देखने को मिलता नहीं है कि महिलाएं भी, आज भी हमारी महिलाएं कुछ चल रही हैं, लेकिन नीचे वर्ग से आती हैं या ऊपर वर्ग से भी आती है, लेकिन नीचे ही वर्ग से देखी जाती है उनको। और हमारे देश में तो पुरुष प्रधान देश ही है, आप सब जानते ही हैं। तो संघर्ष भरा ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी है और आसान भी ज़िंदगी है। तो हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं, आगे भी संगठित रहने की ही ज़रूरत है। हमको ही ताकत मिलती है संगठन बनाने में और आंदोलन करने में। शुक्रिया नीरा जी। आगे बढ़ने से, अजीत की बात लेने से पहले, I'd like to say a few words of what I got, just to summarize what they said. Kaladas ji talked about action as being the kind of movements that he was inspired by with Chhattisgarh Mukti Morcha that he's been part of, and of the leader Shankar Guha Niyogi, who was killed in those movements as a result of those movements in 1991. And since then he's been fighting, and his life has practically never been separate from direct action. And for him, action really means being on the streets, making your voices heard, because that's what is being threatened. And that's also the reason behind
cultivating the Rela collective. So that was Kaladas's point of view, and Neeraji's point of view. Interestingly, she feels that the circumstances are only getting worse, so there is more need for action. And she herself has participated in direct action with the ACC cement factory in Bhilai, which has now recently been acquired by Adani. And they have struggled, and they have won victories there, where both women and men who have fought equally and also have got equal rights in the factory. So, and that's what has inspired her. Okay, hope things are okay there. Right. So action is part and parcel for the Rela activists, and for Neera especially, how do we, in a nation like ours, where patriarchy is overarching, what is the place for women? And that's something that she's been struggling with, and that goes beyond being on the street, and those are it goes on to other spaces as well, and she'll tell us more about it. And I'd like to ask Ajit the same question about what has being in movements been, how's that been part of his life, and what are the kinds of movements and what are the kind of victories that they have faced. नमस्कार, जोहार. हमारे भाषा में जोहार बोलते हैं. दादा भी बैठे हैं सामने, अजीत दादा उड़ीसा से हैं, मैं भी उड़ीसा से हूँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा. और हमारे जो लोकल लैंग्वेज है, मैं संबलपुरी में बोलता हूँ. केंता अच्छो मैंने हाउ आर यू, केंता अच्छो. तो मैं हिंदी में बोलूँगा. ये है कि दादा जो बोल रहे थे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि जब 2006 मैं तो पहले से जुड़ा था, समदृष्टि एक मैगजीन निकलता है उधर से, पाक्षिक पत्रिका. और उससे पहले कि उड़ीसा के अंदर कलिंग नगर जो जाजपुर इलाके में आता है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, 2 जनवरी 2006 को 12 आदिवासियों को मार गिराया पुलिस ने. वो सरकार की तरफ से निर्देश था. वो टाटा कंपनी अपना बाउंड्री वॉल बना रही थी कंपनी के लिए, उसी वक्त मार गिराया. और उसके बाद हॉस्पिटल में एक आदमी दम तोड़ दिया. 13 कुल मिला के 13 जन को, आदिवासी को मार गिराया. काफ़ी आंदोलन हुआ, हलचल हुआ. उसके बाद इतना भी बर्बरता हुआ उनके साथ, उनका जो स्तन है उनको भी काट दिया गया, उनका हाथ, उनका जो अंगूठा है उसको भी काट दिया गया. मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई सवर्ण कोई उच्च जाति, कोई जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हमारे, उनका कोई बेटी अगर मर जाती तो राज्य सरकार उथल पुथल हो जाता, सरकार भी चेंज हो जाता उस वक्त. और 2 तारीख था, हम जब शपथ लेने गए उधर, तो ये तो एक बात है. और उसी वक्त एक जो संघर्ष की बात कह रहे थे कि एक निशान बज रहा था. ढोल निशान एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग कहते हैं गड्ढा बजा. तो ढोल रहता है, निशान रहता है, मोहरी रहता है, ताशा रहता है. वो निशान बज रहा था और मैं भुवनेश्वर स्टेशन में बैठा हुआ था, और उसी वक्त एक गाना निकल आया अपने आप मेरे मन में. तो मैंने सोचा मेरे दिमाग में ये क्या हो रहा है, अपने आप शब्द निकल रहा है मेरे अंदर कि ई पायन पवन झरन डगर सबुनी जरन. ये जो पानी है, ये जो हवा है, ये जो मिट्टी है, ये सब हमारा है. और इसके बगैर हम कोई भी घराना के लोग हो, या फिर मैं हूँ, या फिर कोई भी आदमी हो, या कोई भी प्राणी, जीव जगत की जितने प्राणी भी है, जीव जंतु है, कोई भी बच नहीं सकता. ये एक बात है. और एक दूसरी बात, 2007 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था हीराकुद डैम में.
पानी की आंदोलन को लेकर, पानी के अधिकार को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था और बड़ा ह्यूमन चैन बना था पूरे इंडिया में। ह्यूमन चैन गांधी, क्योंकि पानी जो है हीराकुद बांध का जो पानी है वो हमारा है, और उसी आंदोलन में मैं भी शामिल था, दिल से शामिल था पूरा। और उसी वक्त एक गाना मैंने उस वक्त निकल आया था, संग्रामिया में संग्राम करी जीवा, संग्राम करी अपने मतलब अपने माटी के लिए हम जीवन को अपना निछावर कर देंगे, इस टाइप का है। तो संघर्ष से क्या है, देखिए एक मोमेंट 1980 के 80 दशक में बालको मोमेंट भी जानते हैं सर। गंधमार्दन पहाड़ को खड़ी खनन के लिए बालको मोमेंट चला, और उसी आंदोलन हम लोग पढ़ के जाने उसको। मैं उसी वक्त मेरा जो उस साल में एक साल शायद 80 दशक में मैं शायद पैदा नहीं हुआ, 80 मेरा तो 83 है। उससे पहले लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग पढ़ के जाना। फिर बाद में उसके जो वार्षिक होता है ना, उसका आंदोलन का जो मनाया जाता है उस सब, तो वो सब लेके लोगों ने आंदोलन किया। उस समय गवर्नमेंट शायद कांग्रेस गवर्नमेंट थी शायद, हाँ। और कुछ लोग मिलने के लिए गए थे, बीजू पटनायक जी भी उस पर, तो चल के साइकिल में गए थे। और वो सरकार को ऐसे कर बहुत बड़ा स्टोरी है, पढ़ेगा उसको, कि उसको बंद करना पड़ा। एक सबसे सफल जो आंदोलन है उड़ीसा के अंदर, जो गंधमार्दन पहाड़ को बचाने के लिए, वहाँ के झरना को बचाने के लिए वहाँ के लोग, प्रांतीय लोग, कोई उसका लीडिंग नहीं ले रहा था, सब लोग अपने आप स्पॉन्टेनियसली सब लोग लड़े थे, और वो एक सफल आंदोलन रहा। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ा मैंने। और हम लोग देखते हैं कि ये जो चकाचक दुनिया है, ये जो बना है सब लोग मजदूर ने बनाया है, सब ने मिलकर बनाया है, कोई एक आदमी नहीं बनाया, कोई ऐसे करके कर दिया तो बन गया नहीं है, बहुत सारा परिश्रम है। तो आंदोलन ऐसे बनता है, आंदोलन से गीत भी निकलता है, आंदोलन से मतलब आपका नाटक भी निकलता है। उसी वास्तविक जो चीज़ है उसको देख करके मन में बहुत सारे कुछ निकल आता है, और उसी में से मेरा जो गीत है पैदा हुआ। और एक मैं राइटर बन गया, मैं कभी राइटर नहीं था, राइटर बन के गीत तो गाता हूँ लेकिन राइटर कभी नहीं था। निशान बजा, और निशान बजने से वो जो तरंग आता है उस तरंग बजता रहा, और मैंने लिख लिया। उस वक्त हम लोग कलिंग नगर जो घटना घटी उसको 2 तारीख के बाद हम लोग गए थे विरोध प्रदर्शन के लिए। तो उसका जो संघर्ष है, संघर्ष करने के लिए जो मैं बालको मोमेंट का जो जिक्र किया, वो एक सफल आंदोलन है। आंदोलन करने से, जब एकजुट मतलब मिलने से, हम लोग आंदोलन करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों में बहुत कुछ दम है। थैंक यू अजित। का क्या महत्व है और उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? साथियों, रेला कलेक्टिव एक अलग अलग संघर्षों के लोगों का एक सामूहिक मंच है। इसमें हम लोगों का ये मानना है कि आज के दौर में जितने भी देश के अंदर प्रोग्रेसिव एक कल्चरल कलाकार थे, प्रोग्राम था अलग अलग तरीके से, हम देखते हैं कि देश के अंदर बहुत कमी आ गई है उसकी। हम लिखते भी हैं तो बहुत बच के लिखते हैं कि शायद सरकार हमें घेर न ले। और अब पहले का वो जो नुक्कड़ नाटक और तमाम तरीके की चीज़ें, वो भी बहुत लुप्त सा हो गया है। ऐसे संकट के दौर में रेला का हम लोगों ने एक थोड़ा कोशिश किया कि रेला कलेक्टिव मतलब रेला का एक सामूहिक एक कलाकारों का एक मंच हो, सामूहिक जुटान हो, जिसमें हम चाहे वो बात आंध्र प्रदेश की हो, चाहे बात वो हरियाणा की हो, बात चाहे वो हसदेव का जंगल कट, आप जानते हो हसदेव का पूरा जंगल कट गया, बात चाहे वो एक तरीके से बस्तर का हो, बात चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो। तो तमाम चीज़ों को हम कैसे अपने इस कलेक्टिव के माध्यम से बोल सकते हैं, और बोलना भी चाहिए। अगर इंसान के दमन के खिलाफ अगर नहीं बोलेगा तो फिर वो मृत प्राय है, उसका कोई मतलब नहीं है।
तो वो उस चीज़ों को हम लोग बोलने के लिए एक कलेक्टिव हम लोगों ने रेला का निर्माण किया 2014-15 में, और फिर ये चल पड़ा। हालांकि इसको चलने में बहुत तकलीफ़ें भी अभी भी हैं, और इसको चलते चलते ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसको चलते चलते ही इस दौर में हमारे ऊपर सरकार का एक दमन भी हुआ। NIA ने हमारे घर पे रेड मारा कि आप गाना क्यों गाते हो। मुझे ले गया रांची, और रांची में ये बोला कि तुम मोदी के खिलाफ मत करो और गाना मत गाओ। तो ये क्या है? तो उनको लग रहा है कि देश में बाकी तो को चुप करा दिए हैं, तो ये थोड़ा और कहाँ से नया उभर के आ गया, तो इसे भी चुप कराया जाए। लेकिन हमने कह के आया है कि आप हमें फांसी भी लटका दो, लेकिन हम चुप होने वाले नहीं, क्योंकि हमारा ये दौर है वो चलेगा। तो वो रेला का जो एक अलग अलग संघर्षों के लोगों को, संघर्ष के अंदर भी कलाकार पैदा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ आज आए हैं, और मैं एक संघर्ष से आता हूँ। आज के समय में, आज के तारीख में वहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3000 शिक्षा कर्मियों को, माने एक शिक्षकों को नौकरी से बिठा दिया गया है। उनका आंदोलन चल रहा है सड़कों में। उस सड़क के आंदोलन से उठ के हम यहाँ आए हैं। वहाँ पर सफाई कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। सफाई कर्मी जिनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, उन संघर्षों से, हसदेव के संघर्षों से, अलग अलग संघर्षों से जो निकल के आ रहा है, जो कलाकार, ग्रास रूट के जो कलाकार हैं, जो अपने शब्दों में गीत गाते हैं, झाड़ू मारते मारते गीत गाते हैं, काम करते करते गीत गाते हैं, ऐसे कलाकारों को भी हम समावेश कर रहे हैं रेला के अंदर, ताकि एक जीवंत चीज़ें उठे। एक सिर्फ देख करके, सुन के लिखने की बात नहीं है। हम धरातल से कैसे उन चीज़ों को उठा सकते हैं, वो धरातल के लोग हम यहाँ पर बैठे हैं। तो रेला कलेक्टिव का मूल जो अवधारणा है कि देश के अंदर जितने भी ऐसे आंदोलन हैं, या दुनिया के अंदर भी जैसे आंदोलन है, उनका सॉलिडरिटी करें हम एक उनके साथ हमारा एक संबंध बने, ताकि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सके। और इनको आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों का हमारा मदद करना, हमारे साथ एकजुटता दिखाना, ये भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मुश्किल होगा। इसलिए जो रेला कलेक्टिव है अपने आप में एक काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आपको भी हमारा एक मदद का ज़रूरत है, ताकि हम इस कामों को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हर पल हमें रेला को एक तरीके से एक दबाने का भी प्रयास की जा रही है कि सबको तो दबा दिए हम लोग, लेकिन ये कहाँ से आ गया एक नया रेला कलेक्टिव, तो इनको भी दबाया जाए। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि और रेला का मतलब ये होता है कि मैं आपको बता दूं रेला क्या है। रेला का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं कि रेला मतलब ऐसे लोगों का हुजूम होता है जिसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता और आगे बढ़ जाता है, उसका नाम रेला है। तो वो ये रेला के लिए हम पूरा देश के और दुनिया के तमाम लोगों के आंदोलनों को एक अपने साथ समाहित करके उनके आवाज़ को हम उठाएं और हमारा आवाज़ वो उठाए, ये करने के लिए। और दूसरा, रेला में शब्दों का जो चीज़ है, बातों का जो चीज़ है, हम कोशिश करते हैं कि हर एक भाषा, हर एक बोली का सम्मान किया जाए। आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप तेलुगु की बोली पर बुलडोजर नहीं चला सकते। आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो और किसी की बोली पर जो है आप दबा नहीं सकते। इसलिए रेला का जो थीम सॉन्ग है, पहला जो बैनर गीत है, उसमें तमाम तरीके के भाषाओं का गाना चलता है। एक बार रेला चलता है, उसमें सभी भाषाओं को समाहित किया गया है, ताकि लोग, ये जरूरी है कि हमको भी लगे कि रेला जो है ना एक राज्य का नहीं है, वो सबका है, और इसलिए सभी भाषाओं में वो एक साथ गाया जाता है। तो ये रेला का एक चीज़ें हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम आंदोलनों को और आप जैसे लोगों को साथ लाएं। लेकिन ये बात भी सच में कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ भी और सब जगह दिखता है कि जहाँ पर एक वर्ग भेद का बात आता है ना, वो हमें भी यहाँ दिखा, लेकिन अपन बोलना नहीं चाहते उस ज़्यादा को, कि वर्ग भेद तो है समाज के अंदर बहुत, कि वो एक भयानक स्थिति है। तो ऐसे दौर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। Thank you, Kailash. I'd like to quickly summarize between all the peoples who are suffering injustice, all the peoples who are fighting against injustice, so all the movements, and therefore Rela has tried to
find solidarity among people, among different cultural activists, different struggles in different parts of India, and we also identify with struggles across the globe. So our mission is not limited to any one people, and that's what solidarity means. And that's also been the key reason for creating RELA, which is in RELA call themselves cultural activists. And what is the role of culture in our activism? तो नीरा जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप खुद को सांस्कृतिक कर्मी के रूप में क्यों सोचते हो, और रेला कल्चर और रेला में क्या संबंध है, संस्कृति और रेला में क्या संबंध है? संस्कृति और सांस्कृतिक हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, जिससे हम रोज़ गुजरते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हसदेव की जंगल जो कट रही है, वहाँ के आदिवासी लोग जो जुड़े हैं उस जंगल से, उस ज़मीन से, उस मिट्टी से, उनकी जीने का अधिकार है, वहाँ पे रहने का अधिकार है। वहाँ के बहुत सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। एक तरह से कहे जाने वाली कि जंगल अगर कट जाएगी तो हम कैसे जी पाएंगे, बारिश कैसे होगी, हवा कैसे हमको शुद्ध मिलेगी, और वहाँ के रहने वाले लोग कैसे जिएंगे। उनके जीने का आधार जंगल है। वहाँ से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल, महुआ सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं से उनकी जीवन यापन भी होती है। और वहाँ के जानवर जो हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर जो हैं, वो भी तो तड़प तड़प के मर रहे हैं जंगल के साथ। वहाँ की नदियाँ की पानी भी वो शुद्ध नहीं है। तो ये हमारी ज़िंदगी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति से भी हम गीत जो गाते हैं और लिखते हैं, वो हमारे जिस तरह, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे मिट्टी जो है ज़मीन पे, धरती पे, वहाँ पे किसान जो हल चलाते हैं, अभी तो खैर मशीनीकरण हो गया पूरा, तो किसान ज़मीन पे जब हल चलाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगता है किसान को धान पैदा करने में, और मज़दूरों को इतना सारा चकाचौंध बनाने में, चाहे वो खदान खोदे या फिर मकान बनाए या फिर कुर्सी बनाए या फिर जो भी जितना भी मेहनत करे, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो वो सारा चीज़ संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे हम एक गाना चाह रहे हैं, हम कल गाएंगे, हम थोड़ा सा भी बता देते हैं उनके बारे में कि मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गाऊंगी वो गाना। मोर माटी के मितान चल मजदूर और किसान, और उसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। मशीनीकरण हो गई है, लोग बेरोजगारी भी हो रहे हैं, और जैसे आप ही बता रहे थे कि शिक्षक को भी स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी सही इलाज नहीं है, दवा नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है। तो इसी के ऊपर हम एक गीत गाने वाले हैं कल, मोर माटी के मितान चल मजदूर और किसान, शोषण अत्याचार ला मिटाए बर करो संघर्ष और निर्माण। तो संस्कृति से ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है, और सारी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। बहुत सारी चीज़ ख़त्म भी कर दिए हैं। हसदेव के जंगल को अगर देखेंगे तो बहुत सारा, हर दिन वहाँ पे कटाई हो रही है, और लोग जो आंदोलन, आज भी आंदोलन कर रहे हैं लोग, आदिवासी लोग, और हम उनके समर्थन में जाते भी हैं। तो जब जंगल काटने जाते हैं उसी दिन बहुत सारा फोर्स लगा के वहाँ के विरोध करने वालों को उठा लेते हैं और थाना में दिन भर बंद कर देते हैं। जब तक जंगल कटा जाता है तब फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो संस्कृति ये है, हमारे बोलने की आज़ादी, हमारे लड़ने की आज़ादी, जंगल के ऊपर गीत गाने की आज़ादी, नदियाँ के ऊपर गीत गाने की आज़ादी, ये सारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। शुक्रिया नीरा जी। If you've understood this, you will realize that when Neera ji talks about culture, what comes to her mind are the jungles, are the farms,
एंड संकट में हैं, और ये संकट कहाँ से आ रहा है, वेयर इज़ दिस डेंजर कमिंग फ्रॉम, और उनके आंदोलन में भाषा की क्या भूमिका है, संबलपुरी में जो वो गीत गाते हैं उसकी क्या भूमिका है, और उन्होंने ये भूमिका कैसे अपने गीतों में दर्शाई है. हाउ हैज़ ही brought this out in his songs, the use of his native language. These are the questions that I'd like to present before Ajit. जैसे कि मैंने बताया, पानी का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो कई सारे जगहों पर हम लोगों ने अपनी भाषा में, हम लोग सोचते हैं कि खाली प्रेम का गीत लिखा जाए, फागुन का गीत लिखा जाए और मोहब्बत का गीत लिखा जाए, वो भी लिखा जाए, वो भी ना लिखे तो भी अधूरा रह जाएगा. लेकिन जो किसान हल चला रहे हैं उसी वक्त वो भी गाना गाता है. जब बुनकर बुनता है हमारे एरिया में, उसी समय एक गीत भी है. तो गीतों का बहुत ही, जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था उसी समय में भी गाना का पूरा एकदम बहुत ही महत्व था, और आज भी है. इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोगों ने पानी का आंदोलन किया, कई जगह पर बार बार गाना गाया हम लोगों ने. एक तो गीत है कि जो पायन पवन झरण नगर है, ये तो गाया हम लोग. मैं खड़े होकर के बोलूँ तो ठीक रहेगा. हम लोगों जब गांव में जाते हैं, किसी गांव में पहले गाना गा देते हैं, है ना, लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बोलेंगे भाई ये जो गाना है, हम तो ये ऐसे गाने सुने नहीं है. सब लोग अलग अलग टाइप का गाना सुनते हैं, भजन सुनता है कोई और कुछ गाना सुनता है. तो ये जो गाना गा रहे हो, हमारे गाना गा रहे हो, अपना गाना गा रहे हो, ये जो फीलिंग्स है, उनको लगता है कि ये अपना गाना गा रहे हैं, किसानों का गाना गा रहे हैं, हमारा गाना गा रहा है. माटी का गुटे माँ समिया जाऊ छे सॉरी नाई आसे आओ तो फिरी मते फिरी जा बोली कही देता. काहे मन सर जाए त्रे मनुष, काहे मन सर जाए, काहे मन सर जाए त्रे मनुष, काहे मन सर जाए. समिया हेले मिसबु माटी, समिया हेले मिसबु माटी, मन के खाए हेता. हाय मुनसर जाए त्रे मुनुस, काहे मुनसर जाए. हम सब लोग मानुस है, मनुष्य ही रहना चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए. सबको बचा के, सबको देख के, अगर संस्कृति ये जो बता रहे हैं तो सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा. तो थोड़ी ना कोई एल्युमिनियम खाएगा. अगर किसान पैदा नहीं करेगा, अगर बुनकर नहीं बुनेगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा. चकाचौंध जिंदगी जो दिख रहे हैं ये नहीं है, अंदर कुछ हो रहा है, उसको झांकिए, देखिए, परखिए. फिर इतना ही बोलना चाहूँगा. कल जो गाना है इसमें से ये गाना हुआ दादा. थैंक यू अजित. सो भूमिका लेने में क्या चैलेंज है कि जो अनेकों जो स्ट्रगल्स हैं उनकी बातें आगे रखने में. तो आप कोई भी बोल सकते हैं, और ये हम रेला में ये क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी ही बात नहीं लेकिन दूसरे लोगों की बातें भी रख रहे हैं. हेलो हेलो हेलो. चैलेंज तो बहुत है, खासकर चैलेंज को हम देखें तो पूरा एक राज्य सरकारों का एक जो दमन का एक बात है, जो उनको एक आंदोलनों को, सांस्कृतिक कर्मियों को एक रोकने का बात है, वो सबसे बड़ी चैलेंज है आज के समय में. पर रेला ये कहता है कि ऐ जालिमो देखेंगे कितने को तुम मारोगे, और जीत हमारी निश्चित है, हम जीतेंगे तुम हारोगे. तो ये जो चीज़ें हैं कि गानों में जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में जब हम गीत करते हैं
तो अगर जंगल के गीत गा रहे हैं कि जंगल को उजाड़ना बंद करो, तब सरकार कहती है कि ये गाना मत गाइए आप, ये गाना गाने से आपके खिलाफ धारा लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों को उकसा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज कि ये गाना गाकर आप लोगों को उकसा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इस सरकार विरोधी काम। तो और ये लगभग हर एक राज्यों में आजकल तो सेपरेट राज्यों का कानून बन गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देखिए हर एक जगह उस तरीके का एक कानून बना दिया गया है कि अगर कोई मतलब आजकल एक सांस्कृतिक कर्मियों को भी उस तरीके से आंदोलनकारियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि आप आंदोलनकारियों और संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, आप सब मिलके वही सरकार का खिलाफ करते हैं, इसलिए आपको एक ही डंडा से आका जाएगा। तो ये एक चैलेंज है और उस चैलेंज के साथ काम करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो ये हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हम लोग मुंबई गए थे, मुंबई में रेला का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पर चैत्र भूमि का जो उस तरीके से होता है, उसके अलावा अलग अलग मुंबई के इलाकों में भी हमारा अलग अलग प्रोग्राम। लेकिन लोगों को लगता है कि इस प्रोग्राम में अगर ये सरकार का विरोध हो रहा है या मतलब एक जंगल कटने का विरोध हो रहा है या फिर बस्ती उजाड़ने का, जैसे कि धारावी इलाका है मुंबई का, वो पूरी तरीके से एक अडानी को जा रहा है, उसके खिलाफ अगर हम बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये यहाँ खड़ा हो कि ना हो, इसके बारे में हम गाना गाएं कि ना गाएं। क्योंकि वहाँ के कल्चरल ग्रुपों से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनसे बात की, तो बोले नहीं हम लोग गाएंगे इसके बारे में ना तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर बैन लगा देगी कि हम कोई गाना नहीं गा सकते। तो आप अगर प्रगतिशील कलाकार हैं, अगर आप जमीन से जुड़ करके आप गाना गा रहे हैं, तो आपको इससे अलग उठना पड़ेगा। आप एक मनोरंजन के लिए कलाकार नहीं बने। अगर इस जगह में खड़े हैं तो रेला जो है वो मनोरंजन का कलाकार नहीं, रेला जो है वो एक धरातल का कलाकार है, चाहे जो भी तूफान आ जाए उससे निपटेगा। क्योंकि हम उन इंसानों के, उन समाज का हम बात करते हैं जो समाज जिस तरीके से एक संविधान से लेकर पूरा लोकतंत्र में दिए गए एक समानता के साथ जीने का, सबको जीने के अधिकार है, वो जीने के अधिकार सबको मिलनी चाहिए, बराबर के जीने के अधिकार मिलने चाहिए। उन बातों को लेकर रेला काम करता है। इसलिए जहाँ पर भी इस तरीके का चैलेंज है, उस चैलेंज को हम लोग बिल्कुल निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं निपटेंगे तो फिर बाकी लोगों की तरह हो जाएगा कि जैसे कि यूट्यूब में और तमाम जगह में वो गाने आएंगे जो गाने आपको एक तरीके से जिसको बोलते हैं बाजारवाद में बेचने की बात होगी, बाजार में बेचने की बात होगी, लेकिन धरातल का कोई काम नहीं होगा। तो आजकल अधिकतर कलाकार जो प्रोग्रेसिव या बहुत लोग अपने आप को समझते हैं कि वो बाजार में अपने आप को ले गए, लेकिन धरातल पर जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए जो एक तरीके से पूंजीवाद का और इस व्यवस्था का जो तानाशाही जो बढ़ता है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जब धरातल में उसका विरोध, एक तरीके से विरोध का स्वर अगर कम होता है तो ताकत उसको मिलती है। तो विरोध का स्वर जितना कम होगा उतना उसको ताकत मिलेगा, और विरोध का स्वर जितना ज़्यादा होगा उसका ताकत कमज़ोर होगा। तो विरोध के स्वर को हम जितना ज़्यादा मजबूत कर सके, और इसीलिए रेला उस चैलेंज को लेते हुए विरोध के स्वर को गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से और वाद्यों के माध्यम से करने का एक कोशिश कर रहा है। और वही मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कोशिश तभी सफल हो सकता है जब आवाम का, आप जैसे लोगों का साथ हो। थैंक यू। Thank you. I'll quickly summarize what what Kaladas meant as challenges before Reila. So I will ask a question from the Telangana experience. During Telangana, separate Telangana struggle, all the people's artists, including Gaddar, all of them have joined the movement. And after the Telangana formation was there, after the government was formed, except 2 or 3 artists, all have surrendered to the new government. So that's what I'm not able to understand what may be the reason. You see, in your experience also, maybe there, I want to. हिंदी में
तो सर कह रहे थे कि तेलंगाना का जो संघर्ष था, अलग तेलंगाना बनने का जो आंदोलन था, उसके तहत कई कलाकारों ने काम किया। कई कलाकार थे, गद्दर जैसे गायक थे, उन्होंने उस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर तेलंगाना के बनने के बाद सर का कहना है कि उन लोग सब जो वर्तमान राजनीति है उसमें जुड़ गए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, सर पूछ रहे हैं। सर का क्वेश्चन जायज़ है, उनका बोलना कि कलाकार जो है, एक है डर है कि किसी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ये जो कानून बना है, आप जन विरोधी काम कर रहे हो, अगर सरकार के पक्ष में नहीं, अगर वो चुप नहीं बैठेंगे तो उसको लगा देंगे। एक डर है, और एक डर है कि उनका जो है गायकी ख़त्म ना हो जाए या कलाकारी जो ख़त्म ना हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसी हिसाब से वो लोग सरेंडर कर देते हैं किसी पार्टी में। मैं बोल रहा हूँ, उड़ीसा की बात बोल रहा हूँ मैं। कई कलाकार हैं, लोग फोक संगीत गाने वाले लोग हैं, तो किसी ने भी जब हीराकुद पानी का आंदोलन हुआ, बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हम चुके। जैसा कि कलिंग नगर में घटना घटा, नियमगिरी का आंदोलन चल रहा है, अभी गंधमार्दन का इशू उठ रहा है। कोई कलाकार जाते हैं जो ग्रासरूट लेवल जो आंदोलन करते हैं। ऐसा है कि गद्दर भाई जो है सुर में गाते हैं, लोगों को लगता है, तो इनका डर होगा शायद। और ये भी मामला हो सकता है, ठन पैसा का भी मामला है, लोभ लोहान कुछ मतलब ये भी हो सकता है। डर भी है कहीं हमको अरेस्ट ना कर दे, किसी के अंदर भूख ना कर दे। और जो एक बात है, अगर सरकार को सपोर्ट करेंगे तो कई तरह के प्रोग्राम मिल सकते हैं हमको, ये एक बात है। तो अभी सरकार जो चेंज हुई, पहले जो उधर गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट जो बीजेडी गवर्नमेंट था, वहाँ का जो कलाकार लोग हैं मेरे इलाके में, अभी चेंजेस हुआ, तो उसी हिसाब से वो लोग उनके चले गए हैं, उनके खेमे में चले गए, उनको मिलेगा काम, मिलेगा प्रोग्राम मिलेगा। और एक बात बता ही दे रहा हूँ, एक बात गए थे वो यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म इधर का बॉलीवुड में कई सारे फिल्मों में भी फिल्म का रोल किया। भुवनेश्वर में प्रोग्राम हुआ था, तो एक बंदे ने बताया कि उन्होंने बताया कि हम गाने के लिए गए थे उधर, तो हम देख रहे हैं कोई गायक निकलता ही नहीं, कोई नाटक करने वाला निकलता ही है। अगर करता है तो फिर हो जाता है फिर झड़प। हम लोग तो गए थे एक बार, जलंधर गए थे, जलंधर में, तो वहाँ ऐसा हुआ कि जब थिएटर नाटक गाने का शुरू हुआ तो मिस फायरिंग हो गया, तो पुलिस आके हमको डिटेन करके ले गया। ऐसा भी होता है, डर भी होता है, पैसे का भी मामला है, पैसे ले लो, चुप हो जाओ, प्रोग्राम इकट्ठा कर लो, करोड़ों रुपया में बैठो, ये भी एक और कायदा से अपना भी बात रख सकते हैं। मैं एक उत्तर में जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ा बस इतना ही बात है कि देखिए, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसमें मैं आंदोलन में था, आप कहाँ वैसे बात यह है ना कि आप किस चीज़ के लिए निकले हैं। छत्तीसगढ़ अलग होने तक हम नहीं निकले थे, हम निकले थे कि मजदूर किसानों का एक समानता का जीवन कैसे होगा, हर एक मजदूरों को उनका जीने लायक वेतन कब मिलेगा, हर किसानों को उनका अनाज का कब मिलेगा, एक बड़ा वो मंजिल है हमारा वो छत्तीसगढ़ अलग होने से, आंध्रा अलग होने से किसान मजदूरों को मंजिल मिला नहीं ना। तो इसीलिए जब आपका क्या फ़र्क पड़ा, तो वो बात नहीं है, हमारा एम पता चलना चाहिए, और हमारा मंजिल अभी मिला ही नहीं है अलग होने के बावजूद, इसलिए हमारा लड़ाई, हमारा गाना, हमारा नुक्कड़ चल रहा है। With that, I'd like to close this session. Thank you all for being here, and we look forward to seeing you tomorrow for our singing session, Echoes of Resistance. Exactly these challenges are going to be sung about tomorrow at 4 o'clock.
So please look out and be there. Thank you very much.